Yeah. So Jones reagent, actually, it is like it is a chromium reagent. Okay, and compared to the KMnO4, it is slightly mild, but still it is a strong oxidizing agent. So Jones reagent, it is nothing but a scientist name, and it is the agent reagent is a combination of your chromium trioxide and sulfuric acid, and solvent is used as a acetone. Okay, so sometimes they ask you 1 mark question, what is Jones reagent? So in that case, you have to write it is a combination of chromium trioxide or chromium oxide uh, in presence of H2SO4 in acetone as a organic solvent. ओके, तो ये 1 मार्क का आपको कुछ इतना ही लिखना है, बाकी कुछ लिखना नहीं है. So compared to KMnO4, it is slightly mild reagent, but if we see the application, so application wise, almost it will give you acid. Okay. तो अगर मैंने कीटोन का अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो मुझे अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूंगा तो आई विल गेट कीटोन ओनली. Okay, in that case there is no other byproduct. Okay, so that is the what you call special point, or that is a different point compared to the KMnO4. KMnO4 sometime it will further oxidize the secondary alcohol. Okay, but Jones reagent क्या करता है? Okay, sir. जोन्स रिएजेंट आपको सेकेंडरी अल्कोहल से आपको कीटोन ही देगा. ओके, तो फर्स्ट वी विल सी सम एग्जांपल. Okay. ओके, तो तुम्हारे सामने अभी यहाँ पे स्क्रीन पे पहला एग्जांपल है. इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल. ओके, तो प्राइमरी अल्कोहल को जब मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ आई गेट अ अल्डिहाइड. ओके, बट यू कैन सी वहां पे प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, अल्डिहाइड मिला, लेकिन द टेम्परेचर यू कैन सी इट इज 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो जोन्स रिएजेंट एक्चुअली इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट अगर मैं टेम्परेचर कंट्रोल करता हूँ तो आई कैन गेट अ कंट्रोल प्रोडक्ट. मतलब मुझे अल्डिहाइड के आगे मेरा ऑक्सीडेशन नहीं होगा. I can try to get the aldehyde. Okay, though it is difficult using Jones reagent, because most of the time Jones reagent will give you acid only. लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर कंट्रोल किया तो आई कैन गेट अल्डिहाइड. ओके, लेकिन यूजुअली इन एग्जाम दे विल नॉट आस्क यू सच इन डेप्थ. मतलब आपको पूछेंगे नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलेगा, या फिर रूम टेम्परेचर पे क्या मिलेगा, या फिर मैं उसको और हीट करूंगा तो क्या मिलेगा. ऐसे क्वेश्चंस they won't ask you, so don't worry about that. Just you can remember at 0 degree Celsius it give, sometime it give aldehyde. Okay, so you can see because most of the reactions are performed at room temperature. Okay, so now we'll see the second example. So second example you can see when I use a Jones reagent और वही compound है and then I get a acid. Okay, so that is a common application. मतलब Jones reagent हमेशा क्या देता है? Acid ही देता है, because most of the reactions are performed at room temperature. Okay, and then go to the third example. तो third example पे जाते हैं तो secondary alcohol है, and as I said secondary alcohol always give you ketone. Okay, so there is no other byproduct. Okay, so ketone is a final oxidized your product. Now mechanism. So as I said to you during lectures कि mechanism आप लोगों को नहीं है. Okay, but if you know the mechanism well and good at SY level, because TY में आपको mechanism लगने वाला है. Okay, because they ask you some 2 or 3 marks question on such topic. अभी आपको 1 मार्क का आएगा या फिर predict the product आएगा. So it is just you have to write the product or you have to write the reagent. Okay, so it is much simple. But next year TY में या फिर MSc when you go, you have to know, you must know the mechanism, because mechanism, without mechanism you cannot predict the product actually, because बाद में आपके number of compounds बढ़ने वाले हैं, तो you cannot go on by heart. तो आप बाद में रट्टा नहीं मार सकते कि यही देगा हर तो वैसा नहीं कर सकते. तो मैकेनिज्म आपको आएगा तो जस्ट नो द मैकेनिज्म, देन स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा भी लो, आप उसको मैकेनिज्म है तो पता आपको, यू कैन एबल टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट. ओके, तो मैकेनिज्म इसका एज आई सेड ये chromium trioxide. तो usually chromium trioxide it is not the commercial compound. Okay, it is prepared from
पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके, K2Cr2O7, ओके। कल हम लोगों ने एमसीक्यू देखा ना, तो पूछा था उन्होंने जोन्स रिएजेंट क्या है, तो वहां पे लिखा था हाँ K2Cr2O7, ओके। वो तो यहाँ सेवन पे भी वही है, तो यहाँ पे स्लाइड पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यू हैव टू नो दैट CrO3 कहाँ से बन रहा है, K2Cr2O7, K2Cr2O7 O7 से, ओके। इट इज नेम इज ओके पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। डाइक्रोमेट हाँ, तो पोटेशियम क्रोमेट इज ऑल्सो देयर, हमारे लैब में भी है, पोटेशियम क्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ओके। दो ये दीज आर द इनऑर्गेनिक रिएजेंट, ओके। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को मैं अगर इसमें डालता हूँ एक्वस H2SO4 में, तो एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में डालता हूँ, तो इट विल चेंज इनटू CrO3, ओके। तो वो ब्रेक करता है, किसको ब्रेक करता है, K2Cr2O7 को, ओके। So that is you will get, and you will get a CrO4H2, or we can say H2CrO4, okay। यहाँ दिख रहा है ना, okay। I will just show you with the, so this is nothing but your H2CrO4, okay। So this is nothing but a chromic acid, okay। दिख रहा है क्या पिंक कलर सर्कल में, हाँ 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 दिख रहा हाँ। तो इट इज क्रोमिक एसिड है, उसको क्रोमिक एसिड बोलते हैं। तो यूजुअली जब मैं K2Cr2O7 और मैं जब उसमें ये डालता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड डालता हूँ, तो इट विल फॉर्म क्रोमिक एसिड एक्चुअली, वो इंटरमीडिएट है, ओके। वो इंटरमीडिएट है। हाँ तो क्रोमिक एसिड क्या करता है, आपके अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। अभी अल्कोहल में OH ग्रुप है, ओके। तो OH ग्रुप will OH group is nothing but it is having a lone pair oxygen pair, so it is nothing but a nucleophile, and you know all chromium all metals are electropositive, so that means they are electrophile, इलेक्ट्रोफाइल yeah। तो हमेशा as I said during all the lectures कि organic reaction consists of electrophile nucleophile, तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, alcohol is a nucleophile and you have the electrophile that is your chromic acid, तो it form a complex that is a chromic ester बन गया, देखो। तो यहाँ पे क्रोमेट एस्टर बन गया, तो ये आपका क्रोमेट एस्टर बन हाँ गया है। और उसका बाय प्रोडक्ट क्या आएगा अभी यहाँ पे -H2O, ओके। तो ये आपका ओके H2O है ये, ओके। एंड क्रोमेट एस्टर इज अ इंटरमीडिएट। लेकिन क्रोमेट एस्टर को मैं जब इसको ब्रेक करता हूँ, आई गेट अ ऑक्सीडाइज कंपाउंड, okay। ओके And you can see the why it is oxidizing agent, you can see the oxidation state, क्रोमिक एसिड का कितना था, कितना है अभी यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, ओके। इट इज 6 एंड इट इज चेंज इनटू 6 Cr4, 4 ओके। सो दैट हाँ इज द इंडिकेशन कि उसका ऑक्सीजन स्टेट कम हो गया है, सो दैट मीन्स इट इज सेल्फ कम ऑक्सीडाइज हो हो गया गया है, ओके। तो रिड्यूस हो गया, सेल्फ सेल्फ रिड्यूस हो गया, सो इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग ओके एजेंट, ओके ओके। सो दैट इज अ, यू शुड नो ऑलवेज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाँ। हाँ तो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीजन स्टेट कम हो जाता है, ओके। दैट इज अ प्रॉपर्टी यू शुड नो, okay, because sometime they may ask you in MCQ also, chromium when it undergo when it act as oxidizing agent, what is the change of oxidation state, so they will give you from 6 to 2, 6 to 4, 6 to 1, 6 to 3, तो आपको प्रिडिक्ट करना है, तो आपको लिखना है कि it will change from 6 to 4, okay। तो ये आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से फोकस से, तो उसलिए मैंने स्लाइड में सब कवर करने की कोशिश की है, ओके। सो यू यू हैव टू सी व्हेन यू, आई ऑलरेडी फॉरवर्डेड द स्लाइड्स, सो उसको ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़ो और उसको ध्यान से समझ लो, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके।